A very big hello to all my students. I'm here with the solution of PT7, the last PT, with the botany part. Let's start with the very first question. Which of the following is not a functional unit? याद रखें functional unit नहीं है. किसका? Of the ecosystem. The first one is what? Energy flow. What does the word energy flow mean? I hope you are aware that energy कहाँ से? हमारा source कौन है? Sun है. सन से एनर्जी मिला. हाउ मच ऑफ द सोलर एनर्जी इज द पार, मतलब पार कितना है सोलर एनर्जी से? इट इज स्लाइटली लेसर देन 50% ऑफ इट. फिर पार का भी कितना लेके प्लांट्स खाना बनाते हैं? 2 to 10%. एंड देन फर्दर इट इज बीन ट्रांसफर्ड. सो इज दिस द फंक्शन ऑफ इट? यस, ऑब्वियसली इट्स द फंक्शन ऑफ इट. तो ए इज करेक्ट. इट इज not the function, it is the function. Decomposition. What is decomposition? Breaking down of the complex molecules, complex organic molecules into one. What? The simplest inorganic molecules. तो क्या मिलता है वहाँ पे? We get carbon dioxide, we get water, we get minerals. ठीक है ना? So is this known as the function of it? Obviously yes, it's the function of it. Productivity. What is productivity? बहुत students का problem है with the word productivity. Productivity is total biomass produced by the organism per unit area, per unit time. So if you want to measure this productivity, that can be measured in the weight. If you measure in the weight part, grams per meter square. अगर rate बोलते हो, per year also. But when you measure in the form of energy, what is that? Kilocalories per meter square per year. So is this known as the function of it? Yes. तो तीनों के तीनों functions हैं, but question में क्या पूछा? Not the function of it. तो what is it? The fourth option, stratification. What is stratification? Stratification is the vertical layering. Vertical layering. If I talk about a forest, I am going to get the vertical layering. ये सबसे बड़े plants हैं. This is what? The trees out here, the topmost layering out here. Then I talk about what? The shrubs out here. Then I talk about what? The herbs out here. So what is this known as? This vertical layering of the plants is said to be the stratification. The topmost is what? The trees. What do you have the next? The shrubs. What do you have the next? The herbs and the grasses. Therefore, the answer for 101 happens to be the D option. Fine. Chaliye. Let's talk about 102. Plant and the herbivore. What are herbivores? One which feeds on the plants. Obviously plants में आपके पास trees भी हो सकता है, herbs भी, shrubs भी, but फिर भी क्या बोलते हैं? Herbivores. A plant and a herbivore relationship is an example of. Is this an example of competition? दोनों में कोई competition है? Obviously no. Is this an example of parasitism? Obviously no. Is this an example of commensalism? Obviously no. What is this example of? It's an example of predation. So what is predation first of all? Predation has two organisms. One organism is the predator and one organism is the prey. तो यहाँ पर हमारे पास predator कौन है? यहाँ पे हमारे पास predator happens to be the herbivore. Herbivore क्या खाता है? It is eating what? The prey. And what is the prey out here? Yeah, who is the prey out here? The plants. So herbivores feed on the plant. So ये उसको ले रहे हैं यहाँ पर. So these have been benefited and these have been harmed. So what is the answer for 102? The answer for 102 happens to be predation. Fine? चलिए. So answer is C. 103 now. What is 103? 103 देखिए. sea anemone. आपको पता है sea anemone है. ये हमारे पास sea anemone है. I can't draw it properly. So this is sea anemone out here. And here you are going to have few clown fishes. Don't laugh at my diagram. So this is it. तो sea anemone जो है उसके नीचे पे क्या होता है? Clown fishes बैठा है. So when the predator of the clown fishes come, वो आके इसको खाने आ रहे हैं. बट हमारे पास सी एनिमोन क्या छोड़ता है? टेंटिकल्स. सो टेंटिकल्स आर गिवन आउट. तो वो प्रीडेटर को इससे डर लगता है. प्रीडेटर्स कैन बी हार्म्ड आउट हियर. तो वो आके इसको खाने नहीं आएगा. So the clownfishes are protected from its predators with the help of what? The sea anemones. So that means what happens out here? The clownfishes को क्या हो गया हमारे पास? Clownfish has been benefited. But what about the sea anemone? सी एनिमोन को ना कोई बेनिफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ. सो दिस इज जीरो. सो ऐसा चीज म्यूचुअलिज्म होता तो क्या होता? दोनों के प्लस प्लस. अब मेंसलिज्म होता तो क्या होता?
एक को माइनस, एक को जीरो। प्रिडेशन होता तो क्या होता, एक को प्लस, एक को माइनस। बट कमेंसालिज्म इज वन जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ बट इसको बेनिफिट हुआ, सो दैट मीन्स 103 का आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। फाइन, क्लियर विद दिस? चलिए 104, व्हाट इज 104 डीलिंग विद? डेजर्ट प्लांट्स। ऑब्वियसली डेजर्ट में क्या प्रॉब्लम है? डेजर्ट में प्रॉब्लम है पानी का। तो अगर मैं एक प्लांट हूँ, अब मेरे पास पानी नहीं है, मैं बचाना चाहती हूँ पानी को, सबसे पहले मेरे पास क्या हो गया, थिक क्यूटिकल। सो क्यूटिकल, जो थिक क्यूटिकल है कहाँ पर होती है? इट इज प्रेजेंट अबाउट द एपिडर्मिस। दिस द एपिडर्मिस, दिस अ थिक वैक्सी लेयर प्रेजेंट अबाउट द एपिडर्मिस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, संकन स्टोमेटा। ये हमारे पास एपिडर्मिस है। नॉर्मली एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, पर संकन स्टोमेटा मीन्स स्लाइटली नीचे, तो दिस इज संकन। बिलो दिस संक हो गया, संक मतलब नीचे हो गया, ठीक है। कैम्प पाथवे, कैम्प पाथवे मतलब क्या? कैम्प प्लांट्स का स्पेशलिटी क्या है? दिस कैम्प प्लांट्स आर हैविंग स्कोटो एक्टिव स्टोमेटास। क्या होता है उनके पास में? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटास। कुड एनीबडी रिकॉल व्हाट इज स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा मतलब द स्टोमेटा विच क्लोजेस ड्यूरिंग द डे। खुलता कब है? रात को। जब रात को तो ज्यादा धूप है ही नहीं, तो ट्रांसपिरेशन कम है। सो दैट मीन्स कैम्प प्लांट पाथवे ऐसा पाथवे है जिससे ट्रांसपिरेशन भी कम हो रहा है। सो दैट टेक्निकली मीन्स अ डेजर्ट प्लांट के पास क्या होना चाहिए? ए भी होना चाहिए, राइट है। बी, वो भी राइट है। सी, वो भी राइट है। देयरफॉर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैपेंस टू बी द ऑप्शन नंबर डी। फाइन, चलिए ना 105। Many of you will say that ये तो NCERT में नहीं है। I agree this is not in NCERT, but फिर भी ऐसा correlated question आता है। So let's talk about that. 105. The study pedology. सबसे पहले pedology. Pedology. तो चलिए इसको word देखो, pedon. What is pedon? A smallest 3D structure of the soil, which gives you all the profiles of the soil. What are the different profiles of the soil? छोटे होते पढ़ा होगा आपने। Ozone. What is ozone? I'm not talking about the ozone. I'm talking about the organic zone. Then I'm talking about what? A zone, B zone. Then you are going to have the rocks. So that is giving you what? The soil profile. Different layers of the soil profile मतलब different soils का layer. फिर मेरे पास में क्या है? Obviously that is pedon. The study of the soil is known as pedology. The answer for this option number A. Study of the biotic factors. Biotic means living factors. तो उसको living से कुछ लेना देना नहीं है pedology से। आप, मैं, माइक्रो सब क्या है? Biotic factors. Study of the pollen grains. I hope सबको पता है pollen grains का study को क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं palynology. Palynology. Fine. फिर स्टडी ऑफ लाइट। अरे फिजिक्स वाले हो ना, तो क्या है स्टडी ऑफ लाइट? क्या? ऑप्टिक्स। सो दैट मीन्स व्हाट? हमारे पास में इफ यू एलिमिनेट दैट यू गेट द राइट आंसर फॉर दैट। एंड व्हाट इज द आंसर फॉर 105? द आंसर हैपेंस टू बी द ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए 106। Therefore the answer for 106 happens to be C option. What is that C option? It is organisms. So तीनों चारों levels था, starting with organism, population, community and biome. C, A, B, D. But basic कौन हुआ? Obviously organisms. So the answer for 106 happens to be the C option, organisms. Fine. चलिए 107. Which two factors together determine the vegetation and the soil types? हमारे पास में असली जो है फैक्टर्स जिससे वेजिटेशन होती है, तो क्या पढ़ाया? वो जितने बायोम्स है यहाँ पर, वो बायोम्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो हमने क्या पढ़ा था? दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर एंड द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन। तो अगर आप में से कोई सोच रहा है, जो ग्राफ बना है वहाँ पे टेम्परेचर लिखा है बट साथ में रेनफॉल लिखा है, बट व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? अगर आप अच्छी से एनसीईआरटी पढ़ोगे, दे मेंशन दैट प्रेसिपिटेशन मींस द रेनफॉल एंड रेनफॉल प्लस क्या है उसके अंदर? द स्नो। दोनों मिलके डिटरमाइंस व्हाट? द डिफरेंट वेजिटेशंस आउट हियर. So the answer for the question happens to be the B option, that is what? Temperature and precipitation. A के अंदर टोपोग्राफी. अच्छा, टोपोग्राफी क्या होता है? टोपोग्राफी is the different physical parts. That means basically the height, the depth. That means mountain की बात करी, river की बात करी, वो
सो वहाँ से टोपोग्राफी से कुछ नहीं है, बाकी लाइट एंड रेनफॉल नहीं है। सबसे पहला फीचर हमारे पास टेम्परेचर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट 108, द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। व्हाट इज दैट? इट इज नोन एज आर। आर इज नोन एज नेचुरल इंक्रीज। नेचुरल इंक्रीज, किसका नेचुरल इंक्रीज? व्हाट नेचुरल इंक्रीज आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे इंक्रीज होगी? ऑब्वियसली इसमें हमारे पास दो चीजें आएंगी, वन इज व्हाट? बर्थ, एंड वन इज व्हाट? द डेथ। सो बेसिकली व्हाट? आर इज बी माइनस डी। सो जितना बर्थ रेट हुआ, जितने लोग आर बॉर्न, कितने लोग की डेथ हुई, उसको माइनस करोगे, दैट गिव्स अस द नेचुरल इंक्रीज। Fine. So therefore the answer for 108 happens to be option number A. चलिए 109, photosynthesis and respiration are central to which cycle? Photosynthesis and respiration किस cycle से related है? नाइट्रोजन, आप जब रेस्पायर कर रहे हो, नाइट्रोजन से कुछ लेना देना? नो। फॉस्फोरस, ऑब्वियसली नो, कुछ लेना देना नहीं। सल्फर से नहीं, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड। आप सबको मालूम है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं हम लोग? कार्बन इज फिक्स्ड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड। व्हेन यू से इट इज फिक्स्ड, व्हाट डज इट मीन? दैट मीन आपने कार्बोहाइड्रेट बनाया। बट व्हेन यू टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, व्हाट इज इट? These complex macromolecules, and each macromolecule, may it be carbohydrate, may it be protein, may it be fat, सबके पास कार्बन है। So each macromolecule is been broken down. जब वो टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। So that means photosynthesis और respiration दोनों कोरिलेटेड हैं। प्लांट्स नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, फिक्स करता है, रेस्पायर करता है, बाहर में देता है। एनिमल्स भी लेते हैं, रेस्पायर करते हैं। सो व्हाट इज दिस? सो दैट मीन्स इन दिस पोर्शन 109 का आंसर हैपन्स टू बी ऑप्शन नंबर बी। दैट मीन्स कार्बन का लेना देना किस में चलता है? फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ओनली प्लांट्स आर द वन विच अंडरगोज फोटोसिंथेसिस एंड respiration is performed by every trophic level. Fine. चलिए 110, age pyramid of expanding population is. अब देखिए इसको, expanding population, अगर मेरे पास पहले बात ऐसे मेरे पास 3 है एज पैरामिड्स। सबसे पहले एज पैरामिड है क्या? वी आर हैविंग 3 एज ग्रुप्स। वन एज ग्रुप इज नोन एज प्री रिप्रोडक्टिव, दैट मीन्स छोटे बच्चे। देन वी आर हैविंग रिप्रोडक्टिव, then we are having post reproductive. Fine. प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये मेरे पास में नीचे में सबसे प्री रिप्रोडक्टिव आएगा, फिर मेरे पास रिप्रोडक्टिव आएगा, फिर पोस्ट। सो दिस इज प्री, दिस इज रिप्रोडक्टिव, दिस इज पोस्ट। अगर मेरे पास ट्रायंगुलर बन रहा है तो ऑब्वियसली प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव कम है, पोस्ट ज्यादा है। ऐसा क्या शेप दे रहा है? ट्रायंगुलर। सो दैट मीन्स व्हाट इज इट? इट हैपेंस टू बी एक्सपैंडिंग। Fine. So therefore for expanding population I am going to have a triangular one. अगर मेरे पास बेल शेप्ड है, बेल शेप में क्या होता है? सेकंड बी ऑप्शन देख लीजिए। सो दिस इज द आंसर फॉर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। लेट्स टॉक अबाउट द बी ऑप्शन आउट हियर। अगर मेरे पास बेल शेप्ड है, मेरे पास प्री रिप्रोडक्टिव एंड द रिप्रोडक्टिव हैपेंस टू बी सेम, दोनों के दोनों मेरे पास सिमिलर बन जाता है, तो आई गेट अ बेल शेप्ड वन। ओके, सो वहां पे मेरे पास क्या हो गया? दिस इज अ स्टेबल पॉपुलेशन। You can see the diagrams from the book. So the second वाला stable में pre-reproductive, that means this and this happens to be same and that gives you a bell shape. Third वाला देखिए, C वाला देखिए, urn shape में हमारे पास reproductive happens to be more than the pre-reproductive. Pre-reproductive से reproductive हमारे पास more हो जाता है, so that makes it smaller out here. तो ये कम फिर ज्यादा हमारे पास, so what does it make? It makes it what? Declining population. तो C का क्या है? Declining. Fine. So मेरे पास में A is the answer for that and none of this obviously is wrong. Fine. चलिए 111, logistic growth curve. चलिए देख लेते हैं। अगर आपको ये याद है, ऐसा ग्रोथ कर्व बना, हमारे पास में ग्रोथ कर्व्स है। यहाँ पे मेरे पास में इफ यू टॉक अबाउट दैट, यहाँ पे मेरे पास पॉपुलेशन है, डेंसिटी बोलो, ग्रोथ बोलो, और यहाँ पे मेरे पास टाइम है। इफ यू प्लॉट अ ग्राफ फॉर दिस, एक हमारे पास में ग्राफ ऐसा बनता है, दिस इज के आउट हियर। What does K mean? अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन आएगा। K means what? Carrying capacity. अगर मेरे पास ऐसा ग्राफ है, ये ऐसा करके, what is this known as? J shaped. अगर मेरे पास ऐसा है, that means मेरे पास log फेस कितना स्ट्रेट स्टीप है, कितना इंक्रीज है, दिस इज नोन एज, ऐसे वाले को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल।
exponential, which is normally not possible because ये बोलता है resources are unlimited. What is this? It talks about resources are unlimited. But ये हमारे पास नहीं है. Logistic मतलब जब resources are limited, resources are limited, तो मेरे पास कैसा बनेगा shape? That becomes quite like this. थोड़ा सा देखिए बराबर जा रहा है, फिर gradual increase and then it becomes like this. What is this? This gives me a S-shaped curve. And nature में resources are limited. We can never have a J-shaped curve. इसका वाला जो बनता है that is J-shaped. But इसमें क्या बनता है? S-shaped. तो logistic happens to be S-shaped. It is realistic and it is not the J-shape. It shows linear curve, no, and occurs when the resources are unlimited. तो कब बनता है? In case of the J-shape. Therefore, the answer for 111 happens to be the option number A. Fine. I hope it's clear to you. 112 is the same wala which I just mentioned. Let me draw it again for you. This is the growth. This is the time. X-axis पे time है. Y पे growth. Population density बोल सकते हैं आप लोग, कोई बात नहीं, इसको you can write the population growth. What is this? This is the K carrying capacity. चलिए अब देखते हैं S shaped. अभी मैंने बताया S shaped को क्या बोला था हमने? S shaped happens to be logistic. और क्या मैंने बताया logistic के साथ में? Resources limited. ठीक है, चलिए देखें कैसे होता है. You start from here. Just have a look for it. यहाँ से हमने start किया, देखो, देखिए क्या हो रहा है. दिस पोर्शन अभी मैंने जो बताया, इट इज व्हाट अ ग्रेजुअल इंक्रीज. दिस इज नोन एज अ लैग फेस. शुरू में क्या है? लैग फेस. ग्रेजुअल इंक्रीज. ठीक है, ठीक है, इसको लैग फेस बोलते हैं. फिर ये देखिए इसके बाद क्या हुआ, यहां से यहां तक ये एक्सपोनेंशियल कर रहा है, देखो. फिर उसके बाद मेरे पास में आ गया लॉग फेस. व्हाट इज लॉग फेस? नोन एज एक्सपोनेंशियल. फाइन. फिर उसके बाद आप देखोगे ये इसके बाद में ये ऐसा बन जाता है. So what is this? It's a gradual decrease now. So then you are going to have a gradual decrease. देखो इसको. S-shaped or sigmoid growth shows an initial what? Dash. What is this? Initial is what? Gradual increase. Rapid increase is wrong. ग्रेजुअल इंक्रीज बी में ठीक है, तीनों में ग्रेजुअल इंक्रीज. तो सेकंड ए को छोड़ देते हैं, हमारे पास 3 बच गया. उसके बाद एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल, चलो तीनों राइट है. फिर मेरे पास में आ रहा है रैपिड डिक्लाइन. रैपिड नहीं है, दिस अ ग्रेजुअल डिक्लाइन, धीरे धीरे वहां पे डिक्लाइन हो रहा है. सो दैट मीन्स हमारे पास बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, हमारे पास में सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया. तो हमारे पास में क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी आउट हियर. Let's talk about question number 113. The maximum number of individual of a population that can be sustained indefinitely in a given habitat. देखिए, ये एक habitat है, ये एक एरिया है, इसमें कितने लोग रह सकते हैं, दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ. यहाँ पे कितने रिसोर्सेस हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्सेस इस एरिया की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है. दैट मीन्स कितने लोग रह सकते हैं जिनको खाने पीने का प्रॉब्लम, रहने का प्रॉब्लम नहीं हो. सो व्हाट इज दिस? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन कैन बी सस्टेन इंडेफिनेटली. तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे कैरिंग कैपेसिटी. सो आंसर फॉर 113 हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. एंड व्हाट इज दैट? कैरिंग कैपेसिटी. एंड व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी का सिंबल? कैरिंग कैपेसिटी तो सब में लिखा है. अभी आपने देखा होगा मैंने एक लाइन बनाया था. व्हाट वाज दैट लाइन? दैट इज नोन एज के एंड दैट इज नोन एज द कैरिंग कैपेसिटी. सो सभी ऑप्शन कैरिंग कैपेसिटी है, बट दे हैव गिवन द डिफरेंट सिंबल्स फॉर दैट. जो मैंने एक लाइन बनाया था जहां पे वो सिमिलर हो जाता है, दैट इज नोन एज व्हाट? द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इट. ओके, उसके बियॉन्ड हो जाने से क्या होगा? एनवायरमेंट रेसिस्टेंस कम्स इनटू कंसिडरेशन. दैट मीन्स अगर इसके बियॉन्ड आ गया तो कैरिंग कैपेसिटी मतलब माइनस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय द कैरिंग कैपेसिटी. व्हाट इज दिस नोन एज? दिस इज सेड टू बी द एनवायरमेंट रेसिस्टेंस. ओके. 114 अबिंगडन टॉर्टॉइस. तो कैसे हमने पढ़ा था? एक गैलापागो आइलैंड सबको पता है, उसमें एक टॉर्टॉइस है. टॉर्टॉइस का स्पीड सबको पता है कितना स्लो है, धीरे 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 किस पे फीड करता है? इट फीड्स ऑन द ग्रासेस. तो खाना खा खा के जाता है, तो ग्रेजुअली आज इतना खा लिया, कल इतना खा लिया, धीरे धीरे. बट उसके अंदर किसको इंट्रोड्यूस कर दिया हमने? उसमें हमने इंट्रोड्यूस कर दिया एक गोट को. अब गोट मैडम क्या है? गोट मैडम भी हर्बीवोर है, टॉर्टॉइस भी हर्बीवोर है, और वो भी ग्रेस करती है. बट ग्रेस कर करके वो फास्टर ग्रेस करके चली गई. तो
तो जब टॉर्टोइस दूसरी नेक्स्ट जगह पे पहुंचा वहां पे भी खाना नहीं, फिर आगे पहुंचा खाना नहीं, तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द फूड, खाना तो था बिकॉज गैलापागो आइलैंड में इनडेफिनेट खाना है, बहुत सारा खाना है, बट द प्रॉब्लम इज वो तो वहां तक पहुंच ही नहीं सका बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ इट. सो दैट इज वाई जब हमने गोट को इंट्रोड्यूस कर दिया तो व्हाट हैपेंड आउट हियर, क्या हो गया, अबिंगडन टॉर्टोइस जो है यहां से एक्सटिंक्ट हो गया. ये किसका एग्जाम्पल है, दिस एग्जाम्पल ऑफ गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. दैट मीन्स क्या बोला था गॉस ने बोला था द when you are going to have a superior and an inferior, the superior वाला persists, survival of the fittest. That means exclude कर दिया. कौन exclude हो गया यहाँ पे, tortoise, और कौन वहाँ पे रह गया, the goat. Is that clear? तो Gauss exclusion principle का example, this is one of the example for that. Fine? चलिए 115 par. What does par stand for? सबको पता है. सबसे पहले ये हमारे पास सोलर एनर्जी है, इधर से सनलाइट आई, ये पूरी सनलाइट है, इसमें से only this part is been utilized. What is this part known as? Waveguide. What is the wavelength for that? This is 400 nanometer to 700 nanometer. This portion जो utilize होता है by the plants, what is that known as? PAR. So what does PAR stand for? Photosynthetic, मतलब खाना बनाने के लिए active radiation. So what is the option for that? The option for that happens to be option number C. Fine? चलिए. Let's start with 116. Let's read the question. When a predator preferentially eats the superior competitor in a pair of the competing species. Let's take an example. सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये मेरे पास में एक predator है, predator, ठीक है ना, इसके पास में अलग अलग प्रेस है, ठीक है, let it be B है, C है, D है, ये तीनों के तीनों क्या है, आपस में कॉम्पिटिटर है, ठीक है, ये कॉम्पिटिटर्स है, बट इसका तो प्रे है, और इनमें से जो स्ट्रॉन्ग है कौन है, सपोज ये बी है. अब आया ये प्रीडेटर, उसने क्या किया, इसको आके खा गया. अब ये जो है, ये जो दोनों थे क्या करेंगे, एक साथ मिलके ही रहेंगे ना. द इंफीरियर कॉम्पिटिटर इज मोर लाइकली टू गो एक्सटिंक्ट. अगर वो खाया इसको, ये जो इंफीरियर है वो क्यों एक्सटिंक्ट होंगे, नहीं होंगे. दैट इज रॉन्ग. द सुपीरियर कॉम्पिटिटर इज मोर लाइकली टू परसिस्ट. सुपीरियर कॉम्पिटिटर तो ये था, वो मर जाएगा. कोएग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटिंग स्पीशीज इज मोर लाइकली, ये चला गया तो ये जो दोनों है कोएग्जिस्ट करेंगे. Therefore the answer for this question happens to be the C option. एक और एग्जाम्पल बताती हूँ आपको. हमारे पास में बहुत सारे प्लांट्स हैं. लेट्स टेक दिस कॉम्पिटिटर्स एज प्लांट्स. मेरे पास में डाइकॉट्स हैं, मेरे पास में मोनोकॉट्स हैं, एंड डाइकॉट्स भी बहुत सारे हैं. लेट मी टेक डाइकॉट्स एज टू स्पीशीज, कुछ भी A एंड B. मेरे पास में मोनोकॉट्स में, मेरे पास में मैं ले लेती हूँ चलो C, एंड C नॉर्मली इज व्हाट, ग्रासेस, ठीक है. अब मेरे पास आ गया इनके ऊपर एक हर्बीवोर. अब हर्बीवोर का हमारे पास क्या है, हर्बीवोर मीन्स विच इज डिपेंडेंट अपॉन दिस प्लांट्स, है ना, वो आके इन सबको खाता है. बट एक हर्बीवोर को जनरली पसंद कौन है, ग्रासेस विच आर द मोनोकॉट्स. ये आके इसको खा लिया और ये खत्म. The dicots are inferior in comparison with the monocots. तो ये जब चला गया, ये दोनों भाई भाई बन के रहेंगे. So what is this? Coexistence of competing species is more likely. Therefore, the answer for 116 happens to be the C option. Fine? चलिए 117. All of the following belongs to the cereal communities. Cereal communities. याद है cereal communities? सीरियल कम्युनिटीज में क्या आता है, सक्सेशन में. मैंने आपको सिखाया था, अभी पहले भी क्वेश्चन क्या है, हमारे पास में लिथोसिर हो सकता है, हाइड्रोसिर हो सकता है. व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड लिथोसिर, क्या था लिथोसिर में सक्सेशन में, याद करिए, लाइकेन आर द पायोनियर्स. फिर उसके बाद में कौन है, मॉसस, फिर कौन है, ग्रासेस, फिर कौन है, हर्ब्स, फिर कौन है, श्रब्स, एंड द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन टू बी द ट्रीज और द फॉरेस्ट. तो वो हमारे पास में वहां पे देखिए लाइकेन आ गया, हर्ब्स आ गया, ये दोनों तो नहीं आया, ठीक है ना. पर याद करने के लिए क्या सिखाया था मैंने आपको, लेट मी गेट हाई स्कोर, याद हो गया. लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड सक्सेशन. कौन सा, हाइड्रोसिल. उसमें क्या था मेरे पास में, पहला मेरे पास में था फाइटोप्लैंक्टन्स, है यहाँ पर नहीं. फिर मेरे पास में था सबमर्ज प्लांट्स, है मेरे पास में, है. फिर मेरे पास में क्या था, फ्लोटिंग प्लांट्स, है मेरे पास में नहीं है. फिर मेरे पास में क्या था, आफ्टर द फ्लोटिंग प्लांट्स, रीड,
स्वैम्प, है ना, रीड स्वैम्प। फिर मेरे पास क्या था, मार्श मिडो, मार्श मिडो। फिर मेरे पास में क्या था, श्रब्स। फिर मेरे पास में क्या था, ट्रीज। अब उनमें से लाइकन भी मैंने आपको सिखा दिया, सबमर्ज प्लांट सिखा दिया, हर्ब सिखा दिया। क्या नहीं आया उसके अंदर, ए, दैट मीन्स टेरिडोफाइट्स उसमें नहीं है। सो दैट मीन्स यू आर सपोज टू गो फॉर द आंसर एंड द आंसर फॉर दैट इज 117 का ए। तो जैसे मैंने आपको लिथोसिर का सिखाया, वहां पे भी सिखाया था ना, याद है ना, हाइड्रोसिर का याद करो, इफ पॉसिबल राइट इट बिलो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए 118, इन हाउ मेनी पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस ओनली वन स्पीशीज गेट्स हार्म्ड। चलो पहले देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या है, प्रीडेशन। व्हाट डू आई हैव, प्रीडेशन। लेट मी राइट ऑल द कहते हैं इंट्रैक्शंस, म्यूचुअलिज्म, कमेंसालिज्म, पैरासाइटिज्म, कंपटीशन, अमेंसालिज्म, प्रोटो कॉपरेशन। चलिए देखते हैं। प्रीडेशन, एक प्रीडेटर है, चलो ए और बी लिख लेते हैं। अगर ए प्रीडेटर है, द प्रीडेटर इज बीन बेनिफिटेड एंड द प्रे इज बीन हार्म्ड, ठीक है। नेक्स्ट, म्यूचुअलिज्म, दोनों के पास में बेनिफिट हो रहा है एंड दैट सेड टू बी ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। कमेंसालिज्म, एक इज बीन बेनिफिटेड, द अदर इज नीदर बेनिफिटेड नॉट हार्म्ड आउट हियर। पैरासाइटिज्म, the host is being harmed and the parasite is being benefited. Competition, जब तक compete करेंगे दोनों को नुकसान है, both of these are harmed. Amensalism, one is being harmed, other is neither benefited nor harmed. Proto-cooperation, both are being benefited, but how are these different from the mutualism out here? Not an obligatory relationship. So let's talk about the terms. एक पूछा है, कितना में only one species get harmed? One out here, इसमें आउट वन आउट हियर, इसमें क्या वन आउट हियर। इसके कंफ्यूजन नहीं करना, बोथ ऑफ दिस गेट्स हार्म्ड, फाइन। सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी 3, सो दैट मीन्स द ऑप्शन नंबर ए, फाइन। लेट्स प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 119, सिलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद द प्रीडेटर। अब हमारे पास प्रीडेटर है, प्रीडेटर भी मैंने आपको सिखाया, द वन विच डिपेंड्स अपॉन द प्रे। अ स्पैरो ईटिंग एनी सीड इज नॉट अ प्रीडेटर। स्पैरो क्या है, स्पैरो इज अ herbivore. Again, sparrow may be in the T3 level also, but अभी ये क्या है, यहाँ पे क्या है, वो herbivore है। तो ये herbivore जो क्या है, seed को खा रहा है, and book has written, NCERT has written, a herbivore which feeds on this, the producers, is considered to be a predation. Okay, that is known as a predator, or that interaction is known as predation. So it's not a predator, it's wrong. So directly the answer हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, A. But still let's go for reading the other options too. They keep the prey population under control. Obviously अगर predator है, prey को खाएगा तो उसका control में रखेगा, ठीक है। फिर वो दूसरे को खाएगा तो everything is being kept under control. In nature they are prudent. What did I teach you about the word prudent? Prudent means intelligent. मतलब इंटेलिजेंट है, वो ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। प्रूडेंट मीन्स इंटेलिजेंट, इट वोंट ओवर एक्सप्लॉइट द प्रे, ठीक है ना। इट्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी ट्रांसफर। यस, वो एनर्जी ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अदर ट्रॉफिक लेवल, फाइन। सो आंसर फॉर द क्वेश्चन 119 हैपेंस टू बी ऑप्शन नंबर ए, विच इज द इनकरेक्ट वन। द रेस्ट आर करेक्ट आउट हियर। चलिए 120 now. The influence of environment resistance over the biotic potential is denoted by. चले देखिए, सबसे पहले मेरे पास बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं, डेजिग्नेट करते आर से, रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज। ओके, ये पढ़ा है इंट्रिंसिक इंक्रीज। व्हाट इज दिस मेजर्ड एज, B minus D. What is that? Birth minus death. You can also write B, chota b and D, no problem with that. This is it. The influence of the environmental resistance. अब हमारे पास environmental resistance कब आता है, अगर एक एरिया में the carrying capacity, what is carrying capacity? It is K. Carrying capacity से हमारे पास number of organism ज़्यादा हो जाता है तो what is going to happen? तो हमारे पास resources limited हो जाएगा। रिसोर्सेस लिमिटेड होगा तो देयर विल बी अ कंपटीशन अमंग ईच अदर, खाने के लिए, रहने के लिए, सबसे। जब खाना कम मिलेगा तो malnutrition तो डिजीज तो बाद में डेथ ऑल्सो। सो व्हाट इज दैट,
एनवायरमेंट रेसिस्टेंस का हमारे पे यहाँ पे क्या सिंबल है, K minus N by K. The carrying capacity minus the number of organism by K. More the carrying capacity, more the number of organism than the carrying capacity. कौन एक्शन में आता है? It is the environment resistance. Because of environment resistance क्या होता है? सब कुछ नेगेटिव पार्ट्स आ जाता है. फाइन, चलिए 121. The given graphic representation of age groups of population shows. सबसे पहले देखो ये क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव यंगर एज, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर पोस्ट. तो क्या शेप आ रहा है? इट इज शोइंग मी अ ट्रायंगुलर शेप. ट्रायंगुलर शेप है और वैसे भी बताया है व्हेन द प्री रिप्रोडक्टिव इज मोर देन द रिप्रोडक्टिव, तो ट्रायंगुलर शेप आता है, दैट मीन्स द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. सो व्हाट इज द आंसर फॉर दैट? द ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज द आंसर फॉर इट. ओके फाइन. अगर मेरे पास डिक्लाइनिंग है तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास शेप इट शुड बी हैव अ अर्न शेप. अगर मेरे पास स्टेबल आता तो बेल शेप्ड. ओके चलिए 122. Small animals tend to lose body heat very fast when it is cold outside. Assertion which is correct. Small animals have larger surface area to the volume ratio. देखिए याद करिए, हमने पढ़ा था एनाटॉमी में भी, इवन द सेल, और इस चैप्टर में 3 प्लेसेस में 3 चैप्टर्स में, दिस अ स्मॉलर सेल, दिस अ बिगर सेल. कौन ज्यादा डिवाइड करता? ऑटोमेटिकली द स्मॉलर सेल. क्यों? अ स्मॉलर सेल इज गोइंग टू हैव more the surface area to the volume ratio. ठीक है, that is applied out here. बड़ी बड़ी जो animals होते हैं in the colder areas you won't get छोटा छोटा animals. It's always huge animals. yak है, polar bear है, seal है, ये सब है. We don't get smaller hummingbirds or so. Why? Because बड़ा वाला जो होगा उसका surface area volume ratio कम है, अब छोटा वाला उसका surface area volume ratio ज़्यादा है. NCERT says that heat loss and heat gain is the function of surface area. जब एक छोटा बर्ड है तो जब उसको हीट चाहिए, बिकॉज बाहर ठंडा है, तो वो अपना अपना देखते हैं ऐसे करके फूल जाता है. सो इट टेंड्स टू इंक्रीज इट, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, तो उससे क्या होता है, उसका ज्यादा हीट लॉस होता है. So answer for that 122 is both of these are correct and the assertion is the correct explanation out here. Sorry, the reason is the correct explanation of the assertion. So answer for that happens to be the A option. Okay? Chale 123. For human population, the age pyramids generally show age distribution of males and females in a combined diagram. अभी मैंने आपको बताया, we are having pre-reproductive, we are having reproductive age groups, post-reproductive age groups. Did we mention anywhere that this is the male or the female? Obviously no. जब reproduction करना है, both of these are supposed to be there. So यहाँ पर male and female दोनों के दोनों are present out here. Fine. फिर उसके आगे देखो, the shape of the age pyramid reflects the growth status. अभी बताया मैंने आपको, अगर वो triangular है तो what is this increasing? अगर वो बेल शेप्ड है तो वो क्या है हमारे पास, स्टेबल. अगर वो अर्न शेप्ड है तो हमारे पास में क्या है, वो दैट इज डिक्लाइनिंग. देयरफॉर both of these are correct and the reason happens to be the correct explanation of the assertion. Therefore A is the answer for it. Fine. 124. The vertical strata is occupied by the trees in a forest. सबसे पहले vertical strata किसको बोलते हैं? Vertical strata is known as stratification. तो सबसे बड़े पहले मेरे पास होंगे trees, फिर मेरे पास हो जाएंगे छोटे से shrubs, फिर मेरे पास हो जाएंगे grasses या forest. तो पूछा है the trees क्या occupy करेंगे? Obviously the topmost one. So answer for 124 happens to be the A option. Fine. 125. A biologist studied the population of rats in a barn. The average natality means natality out here is the birth rate. कितना है मेरे पास में 250. फिर बोलता है average mortality M, the death rate is कितना 240. फिर बोलता है immigration out here is कितना 20. Emigration E कितना है 30. Find the net increase in the population. हम सब ने देखा है net increase NO प्लस N प्लस I, अब B प्लस I भी लिख सकते हैं, माइनस
m प्लस ई, आप m को d भी लिख सकते हैं। यहाँ पे NO नहीं दिया, so need not worry about that. Let's go for adding it. 250 plus 20 minus 240 plus 30, so that makes it 270, 270. So the answer for that is 0. That means कुछ increase नहीं हुआ. Therefore the answer for 125 happens to be the B option. Clear? चलिए 126. Place occupied by an organism in relation to the environment. What is that known as? Obviously मैं कहाँ रहती हूँ, वो मेरा क्या एड्रेस है, मेरा एड्रेस क्या है, हैबिटेड है. द आंसर फॉर 126 हैपन्स टू बी द बी ऑप्शन. आई होप ए का किसी को प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड्स. द थर्ड वाला ऑप्शन सी, एडाफिक. एडाफिक वर्ड स्टैंड्स फॉर द सॉइल. सो अगर मैं कुछ बता रही हूँ तो सॉइल कैसी है उसके बारे, तो स्टडी ऑफ सॉइल को मैंने क्या सिखाया था आपको, पेडोलॉजी. सो पेडोलॉजी, पेडोन, एडाफिक, ये सब वर्ड्स आएंगे. तो दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, सॉइल. देन वी आर हैविंग द फोर्थ ऑप्शन एज नीश. लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ, व्हाट इज इट? इट इज द एड्रेस प्लस द प्रोफेशन. दैट मीन्स एड्रेस आउट हियर मीन्स हैबिटेड, प्रोफेशन आउट हियर मीन्स द फंक्शनल रोल. फंक्शनल रोल आउट हियर मीन्स द ट्रॉफिक लेवल. मतलब आप T1 में हो, T2 हो, T3 हो, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स क्या हो और कहाँ पे रहते हो आप. ठीक है. सो दैट मीन्स व्हाट डज द डेफिनेशन से? द रिसोर्सेज विच यू कैन यूटिलाइज, द फेवरेबल कंडीशंस इन विच यू कैन परसिस्ट एंड योर फंक्शनल रोल. ये तीनों मिलके क्या बन जाते हैं? नीश या नीच, वॉट एवर यू प्रोनाउंस दैट एज. सो राइट नाउ द आंसर फॉर 126 हैपन्स टू बी द ऑप्शन नंबर बी. फाइन. चलिए 127. असिम्प्टोट. पहले ये देखिए कहाँ पे मैंने सिखाया था, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. ये मेरे पास है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ये मेरे पास है पॉपुलेशन डेंसिटी, ये मेरे पास में है टाइम. ठीक है. चलिए देखिए, ये यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया था, ये मेरे पास है कैरिंग कैपेसिटी. व्हेन आई टॉक अबाउट द वर्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, शुरू में मेरे पास ग्रेजुअल इंक्रीज, फिर मेरे पास एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, फिर मेरे पास डिक्रीज. बट व्हेन यू लुक एट दिस पॉइंट, जब मेरे पास डिक्रीज आता, दिस गिव्स मी एस शेप्ड लॉजिस्टिक. यहाँ पे मेरे पास क्या है, कैरिंग कैपेसिटी एंड द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आउट हियर बिकम सिमिलर. दैट मीन्स जितना कैरिंग कैपेसिटी है उतना ही मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सो दैट मीन्स मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितना बन गया, K इज इक्वल टू N. ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी के बराबर. तो वर्ड asymptote means, that means this is equal and it becomes a straight line. When this becomes equal to this, that becomes a straight line. So answer for the option 127 happens to be the D option. Clear? Fine. Normally carrying capacity से ज़्यादा जब हमारे पास organisms हो जाते हैं, वो मेरे पास क्या दे देता है, J shaped curve. ठीक है, डार्विन वाला exponential. वो भी कब होता है, जब resources are unlimited. 128. The number of fungal species in the world is more than the combined total of the species of. कैसे सिखाया था मैंने आपको? The fungal species से जो है species ज़्यादा है किससे? I've taught you something. Farm. What is farm? Fishes, amphibians, reptiles, mammals. ठीक है, ये सबका मिला के हमारे पास फंजाई ज़्यादा है. ठीक है ना. तभी आपको याद है, अगर प्लांट्स की बात करो तो इधर फंजाई एंड एंजियोस्पर्म हमने ज़्यादा बनाए. क्लियर. देयरफॉर द आंसर फॉर दिस 128 हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन. 129. ट्रॉपिक्स आर रिचर इन बायोडाइवर्सिटी बिकॉज. सबसे पहले हमने बोला हमारे पास ट्रॉपिक में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होता है. फ्रॉम हियर व्हेन आई गो टू द पोलर रीजन द डाइवर्सिटी डिक्रीजेस. बट क्यों है वहाँ पर, ये हम सबको पता है. दिस इज इट. यहाँ वाला एरिया यहाँ तो चलो कम है. We compare this 1 and 2, tropic and the temperate. सबसे पहले ट्रॉपिक्स में मेन प्लांट्स को क्या चाहिए, सनलाइट. तो मोर सोलर एनर्जी है यहाँ पर. फाइन. फर्स्ट इन कंपैरिजन टू दैट. दूसरा, यहाँ पर हमारे पास में टेम्परेट रीजन में हमारे पास डिस्टर्बेंस हुआ है. कैसा डिस्टर्बेंस हुआ है, यहाँ पे हमारे पास क्वाइट ग्लेशिएशंस हुआ है.
When we are going to have glaciations, तो क्या हो गया हमारे पास में, हमारे पास बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई. तो यहाँ पे ये क्या रह गया, अनडिस्टर्ब्ड एरियाज. और एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, स्पीशीज डाइवर्सिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम. अगर आपके पास में अनडिस्टर्ब्ड एरिया ज्यादा है तो हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास डाइवर्सिटी ज्यादा होगा. तो ऑब्वियसली यहाँ पे अनडिस्टर्ब रह गया है, टाइम मिला, बहुत ज्यादा टाइम मिला टू फ्लोरिश आउट हियर, तो बायोडाइवर्सिटी इज मोर आउट हियर. नेक्स्ट, मोर सीजनल वेरिएशन. यहां पर हमारे पास सीजनल वेरिएशन कम है, सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है. जब सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है तो हमारे पास में क्या हो गया, इंटरब्रीडिंग ज्यादा है. सो दैट मीन्स लेस सीजनल वेरिएशन. लेस सीजनल वेरिएशन होने से तो हमारे पास क्रॉसिंग ज्यादा है और हमारे पास बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है. If I look at the options, more the solar energy, obviously first one right है. As compared with the temperate homes, tropics have had stable climate. Stable climate है. Rate of outcrossing is higher in the tropics. Obviously बता दिया crossing ज़्यादा है. So all of this happens to be true. The answer for 129 happens to be the D option. चलिए 130. According to Alexander von Humboldt, he was the person उसने क्या बताया, species richness में और किस में comparison बताई, and the area. मैंने आपको क्या बताया था, अगर सपोज मैं एक स्मॉल एरिया का बायोडाइवर्सिटी पढ़ती हूँ, स्टडी करती हूँ, तो आई एम गोइंग टू गेट सर्टेन स्पीशीज. फाइन. फिर मैंने उसको और बड़ा कर दिया, यहाँ से इतना बड़ा कर दिया, मोर द एरिया मोर द डाइवर्सिटी. इसको मैंने इतना कर दिया, मोर द एरिया मोर द डाइवर्सिटी. बट एक लिमिट के बाद में नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ेंगी बट वेरी लेस आउट हियर. That means with the area number of species increases but ultimately क्या होता है, it becomes stagnant out here to a certain limit out here. तो इन्होंने बताया increase in the increasing area but to a certain limit. The answer for this option happens to be option number B. अगर आपको ये ग्राफ याद है, what does it give you? It gives you this is the area out here, this is the number of species. उसने बताया है, if you go for it, it gives you a rectangular hyperbola. बढ़ रहा है but after that it becomes what? Limited out here. It does not increase to that extent. ठीक है ना? S is equal to C A Z. This is equal to, okay? Fine with this? More the area, more the species to a limited extent out here. उसके बाद नहीं बढ़ता है. Clear? चलिए. The answer for this happens to be the option number B, increases with increasing explored area up to a certain limit. Fine. चलिए 131. Species diversity. अभी सिखाया मैंने आपको, ये मेरे पास में ग्लोब है, अर्थ है, ये मेरे पास इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिकल, दिस इज टेम्परेट, दिस इज पोलर. ट्रॉपिकल में ज़्यादा है, उसमें से कम टेम्परेट में, एंड फाइनली व्हेन यू गो टू द पोलर एरिया हमारे पास सबसे कम. आपको अगर याद है बर्ड्स का बताया है, नंबर ऑफ बर्ड्स सबसे ज़्यादा कोलंबिया में, फिर हमारे पास न्यूयॉर्क में, फिर हमारे पास ग्रीनलैंड में. सो दैट मीन्स स्पीशीज डाइवर्सिटी as we move away from, that means species diversity decreases as we move away from the equator. कहाँ पे? Towards the poles. ठीक है? Decreases away from the equator to the poles. Fine. The answer for 131 happens to be the option number A. Fine. चले 132. The Eville quadrant. Eville तो खराब, quadrant मतलब चार. ठीक है? चार चीज. Factors resulting in extinction of the passenger pigeon and cichlid fish respectively are. चलिए देखते हैं. पहले Eville quadrant कौन कौन सा है? One is said to be the habitat loss and fragmentation. Second is said to be overexploitation. Third is said to be alien species, invasion of the alien species. And fourth is said to be co-extinction या coexistence. दैट मीन्स जो एक साथ रहते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, तो दोनों एक साथ खत्म होंगे. ठीक है? तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. अब हमारे पास ऑप्शन में दे दिया है पैसेंजर पिजन. इफ यू रिमेंबर पैसेंजर पिजन एंड उसने दिया है स्टीलर सी काउ. ये दोनों हमारे पास एक्सटिंक्ट हो गए हैं बिकॉज ऑफ व्हाट? यहां पर क्या हुआ? ओवर एक्सप्लॉयटेशन से. सो दिस इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन. अब हमारे पास दूसरा क्या दिया है?
चिकलिड फिश, चिकलिड फिश का एग्जाम्पल देखते हैं। उन्होंने क्या दिया है, चिकलिड फिश का क्या एग्जाम्पल क्या बताया है। जब विक्टोरिया लेक के अंदर में, हमारे पास में ये विक्टोरिया लेक है, बहुत सारी फिशेस हैं, बहुत सारी चिकलिड फिशेस, बेचारी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी बहुत सारी फिशेस हैं। यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस कर दिया क्या, नाइल पर्च को। किसको कर दिया, नाइल पर्च को हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस एलियन स्पीशीज का इन्वेशन। जब ये नाइल पर्च अंदर आ गई, ऑलमोस्ट 200 चिकलिड फिशेस बिकेम एक्सटिंक्ट। तो ये क्या हो गया, दिस इज बिकॉज ऑफ एलियन स्पीशीज इन्वेजन। तो आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी पैसेंजर पिजन का ओवर एक्सप्लॉयटेशन, चिकलिड फिशेस का एलियन स्पीशीज इन्वेजन। सो द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो 133, which of the following is not an ex situ conservation strategy? In situ, ex situ पहले देखो, in situ, ex situ, in situ means in the mother's habitat, अपने घर में, own habitat, own habitat, away from the habitat, fine। आप देखें इसको, not an ex situ मतलब ex situ नहीं है। चलिए देखें, जीन बैंक ऑब्वियसली एक्स सिटू है, हमने जीन्स लेनी है, स्टोर करनी है, कैसे, क्रायो प्रिजर्वेशन से -195 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड नाइट्रोजन। पोलन बैंक द सेम थिंग, पोलन को भी हमने स्टोर करना है क्रायो प्रिजर्वेशन करके। टिश्यू कल्चर लैब्स में करेंगे, सब कुछ निकाल के हम दूर लेके जा रहे हैं। सेक्रेड लेक्स, हमारे बुक में क्या वर्ड है, सेक्रेड ग्रूव्स, सेक्रेड ग्रूव्स का ही एक पार्ट है। सेक्रेड लेक्स होता है, सेक्रेड ट्रीज होता है, सेक्रेड प्लांट्स होता है। अब तुलसी लगी हुई है, हम तुलसी को प्रे करते हैं, सो वी प्रे इट। हम लोग कोई भी तुलसी प्लांट को काटेंगे नहीं। बैनियन ट्री है, उसकी पूजा की जाती तो कोई काटेगा नहीं, तो दैट इज सेक्रेड प्लांट्स, सेक्रेड ग्रूव्स। तो वैसे ही हमारे पास सेक्रेड लेक्स होता है जिसकी हम पूजा करते हैं, तो ऑब्वियसली इसके प्लांट्स को, एनिमल्स को हम लोग नहीं मारेंगे, तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। सो दैट मीन्स यहाँ पर विच इज नॉट एन एक्स सिटू, दैट इज सेक्रेड लेक्स, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। फाइन, चलिए 134, फाइंड द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स होता क्या, पहले बात, हॉटस्पॉट्स आर द एरियाज जहां पर स्पीशीज डाइवर्सिटी इज फाउंड, स्पीशीज डाइवर्सिटी मिलती है। फाइन, पहला चीज। दूसरा, द स्पीशीज आर एंडेमिक आउट हियर, एंडेमिक मतलब यहीं पे मिलती है। तीसरा, आर द एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, दैट मीन्स एक्सप्लॉइट होने वाले, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, एक्सटिंक्शन। फाइन, ऐसे एरियाज को बोलते हैं हॉटस्पॉट्स। ये तीनों फीचर्स होने से हमारे पास में अर्लियर 25 हमारे पास हॉटस्पॉट थे वर्ल्ड में, आज की डेट में 34 है, उसमें से 3 इंडिया में है। फिर से बोल रही हूँ, अर्लियर कितना था हमारे पास 25, आज की डेट में कितना 34, इंडिया में कितना 3। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सेलेक्ट द ऑड वन, इन सिटू कंजर्वेशन, यस, उसी एरिया को हम कंजर्व करेंगे। हाई एंडेमिज्म, देखो एंडेमिक है, राइट है। वेस्टर्न घाट्स एंड हिमालयास, ये दोनों के दोनों इंडिया में है, राइट। ex situ conservation, it is wrong. So 134 का answer is D, which is not the right answer for that. So that is ex situ conservation. Fine. 135. Which of the following forest is known as the lungs of the planet Earth? बताने का जरूरत ही नहीं है। What is this known as? Amazon rain forest. इतना एरिया, इतना प्लांट्स है जहां पर ऑब्वियसली एयर प्यूरिफाई हो रही है, तो उसको लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ। बट और क्या पढ़ना हमने, पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और इसमें क्या देखना हमने, यहाँ पे हैबिटेट लॉस हो रहा है और क्या क्या ग्रो हो रहा है, सोयाबीन और ग्रासलैंड बनाया जा रहा है फॉर कैटल्स के लिए, बीफ कैटल्स के लिए। ठीक है, चल 136। If the internal osmotic concentration of the organism is changed, अगर आपका टेम्परेचर और आपका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, यू आर नॉट अ रेगुलेटर, यू आर नॉट अ वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म या एनिमल, तो आप क्या हो गए, आप कॉन्फर्मर हो गए। तो आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द ऑप्शन नंबर बी। ऐसे वाले को जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन चेंज हो रही है, उसको हम बोलते हैं ऑस्मो कॉन्फर्मर्स। रेगुलेटर तो बता दिया, रेगुलेटर होता तो क्या होता, इज नॉट चेंज्ड। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड मेगाथर्म एंड माइक्रोथर्म। ये देखिए, ये कंडीशंस है, ये मेरे पास ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल, दिस इज टेम्परेट एंड दिस इज पोलर। ऑर्गेनिज्म हु आर फाउंड इन दिस हायर टेम्परेचर, ट्रॉपिकल में हायर है, इसको हम बोलते हैं मेगाथर्म। इसमें मिलने वाला मेजो, टेम्परेट वाला, इसमें मिलने वाला माइक्रो।
So this is used for the organisms who are found in different temperature conditions. High temperature mega, low temperature micro, बीच का temperature meso. Fine. 137. Which of the following statement is false? चलिए देखते हैं. Species diversity decreases as we move from the equator towards the pole. अभी बताया. Yes, it decreases because highest कहाँ पे मिलता है? At the equator. So A option is correct. Tropic harbors less species than the temperate. ये तो इसका उल्टा हो गया. ऑब्वियसली स्पीशीज ज्यादा कहाँ पे होते हैं? हमारे पास में ट्रॉपिक में. सो द आंसर फॉर द 137 हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन. फिर भी देख लेते हैं इसमें क्या है. कोलंबिया हैज नियरली 1400 स्पीशीज ऑफ द बर्ड्स. यस, कोलंबिया कहाँ पर है? ट्रॉपिकल रीजन में. फिर हम टेम्परेट में न्यूयॉर्क का पढ़ा 100 समथिंग. फिर हमने ग्रीनलैंड का पढ़ा जस्ट 57 समथिंग. ठीक है. अ लार्जर tropical Amazon rainforest in South America has the greatest biodiversity on the earth. Right hand. So that means the answer for 137 happens to be the B option. 138. चलिए साइंटिस्ट के बारे में पूछा. Who gave the term biodiversity? That was been given by Robert Wilson. So the answer is D वाला Robert Wilson. फिर भी हम बाकी देख लेते हैं. Robert May ने क्या बताया? Robert May mentioned that there may be 7 million organisms on the earth. बट हमने क्या पढ़ा? 1.7 to 1.8 आर आइडेंटिफाइड. बट इसने बताया हो सकता है इतने हो. नॉर्मन मेयर, ये बुक में नहीं लिखा, बट दिस वाज द साइंटिस्ट हु गेव द वर्ड हॉटस्पॉट्स. हॉटस्पॉट के बारे में इन्होंने बताया. डेविड टिलमैन, क्या किया इसने? स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा, आउटडोर एक्सपेरिमेंट्स किए, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स किए और बताया मोर द स्पीशीज जहां पर है वो ज्यादा स्टेबल वाला इकोसिस्टम है. तो सारे वर्ड्स आपको आने पड़ेंगे. सो फॉर द टाइम बिंग 138 का आंसर हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन. 139. Some examples of recent extinction includes the following 3 subspecies of tiger. ये तो आपको याद करना ही है ना? तो कौन है यहाँ पे? बाली, जवान, कैस्पियन are the different वालास. सबस्पीशीज ऑफ व्हाट? द टाइगर. डोडो मॉरिशस से गया. क्वागा कहाँ से गया? अफ्रीका से गया, है ना? फिर हमारे पास थैलेसिन कहाँ से गया? ऑस्ट्रेलिया से गया. ये भी आ सकता है. नेक्स्ट पेपर में यही डालूंगी कौन सा वाला कहाँ से गया. ठीक है. चलिए 140. Species extinction at the accelerated rates is mainly due to human activities. हम लोग ही तो problematic हैं. Which of the following is the most important cause driving animals and the plants to extinction? चारों के चारों है. एविल क्वाड्रेट हमने पढ़ा था, चारों है, बट मेन वाला कौन सा है? हमारे पास हैबिटेट लॉस. बट अगेन रिपीटिंग, एविल क्वाड्रेट. दैट मीन्स 4 ऐसे कैरेक्टर्स है विच इज कॉजिंग दिस एक्सटिंक्शन, बट मेन हमारे पास कौन है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. देयरफॉर द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन. ठीक है. चलो उसमें एग्जाम्पल में लिखा हो ना, अमेज़न रेन फॉरेस्ट कितना कम हो गया वहां पे डाइवर्सिटी. चलिए 141. लेट्स टॉक अबाउट दैट. मैच द फॉलोइंग. चलिए मेरे पास ए है अर्थवॉर्म. ए को मैं मैच करती हूँ यहाँ से. अर्थवॉर्म क्या है? पायनियर नहीं, डेट्रीवोर, फार्मर्स का फ्रेंड. सो दैट मीन्स 2. फिर मेरे पास बी सक्सेशन. सक्सेशन को किससे मैं मैच करूंगी? सक्सेशन में मेरे पास में पायनियर आता है, क्लाइमैक्स आता है, सीरियल स्टेजेस आता है. तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सी. इकोसिस्टम सर्विसेज. इकोसिस्टम सर्विसेज में सॉइल फॉर्मेशन, रिक्रिएशन, पॉलिनेशन सब कुछ है. तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4. डी पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ से मेरे पास में क्या हो गया? नैटिलिटी. सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3. चलिए देख लेते हैं हम लोग. मेरे पास क्या आया? 2 1 4 3. सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर इट. फाइन. चलिए 142. इट्स अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. देख लीजिए इसको. पहला वाला देखिए, ए हम्बोल्ट. हम्बोल्ट का पूरा नाम क्या था? अलेक्जेंडर हम्बोल्ट. ठीक है. उसने क्या बताया? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. आई होप आप थोड़ा सा देख लेंगे, आपका पेपर में स्पेशल एरिया लिखा है. आई होप इतना तो मेरे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है. स्पीशीज एरिया लिखा है तो दे कैन रीड इट. ऊपर नीचे भी पढ़ के आपको मिल जाएगा, तो घबराना नहीं कि स्पेशल एरिया, दैट इज स्पीशीज एरिया. सो दैट मीन्स ए को मैं 4 से करूंगी. बी टिलमैन. टिलमैन ने क्या किया था? ही मेंशन अबाउट इकोसिस्टम स्टेबिलिटी. क्या बोला? उसने आउटडोर एक्सपेरिमेंट्स किया. बोला जो ज्यादा हमारे पास में स्टेबल है, दैट मीन्स बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, मोर स्टेबिलिटी है, दैट मीन्स द प्रोडक्टिविटी डज नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर. ठीक है. एंड रेसिस्टेंट टू द डिफरेंट चेंजेस दैट मे बी द नेचुरल और द मैन मेड चेंजेस. तो यहां पर टिलमैन के साथ में मैं करूंगी कहां पे? स्टेबिलिटी. 3rd ऑप्शन. फिर मेरे पास आया एलरिच.
पॉल एलरिच, उसने क्या बताया, रिवेट पॉपर एक्सपेरिमेंट बताया कि रिवेट इज व्हाट, द स्क्रूज द स्पीशीज आउट हियर एंड द पॉपर इज अ प्लेन, जिसके मतलब वहां पे क्या, इकोसिस्टम। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा स्पीशीज निकालते हो, इनिशियली इट्स नॉट गोइंग टू डिसबैलेंस इट, बट लेटर ऑन इट्स गोइंग टू डिसबैलेंस इट। बट अगर आपने निकाल लिया कहाँ से, द विंग से, पॉपर के विंग से निकाला, तो वो ज़्यादा हैम्पर करेगा, बिकॉज दैट इज अ की स्पीशीज। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नंबर 1। फिर आ गया मेरे पास कौन, कॉन्स्टेंजा, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। उसने बोला ये सब कुछ इनको फ्री में मिला है, इसका वैल्यू नहीं करते, तो टेक केयर ऑफ दिस फ्री वाला आइटम्स। द क्या है, सॉइल मिली है हमको, एयर मिला है, पानी मिला, इन सबको जाके एक रेट दे दो। कितना रेट लगाया उसने, प्राइस टैग कितना लगाया, 33 ट्रिलियन US डॉलर्स। तो अब हम थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे ना। चलिए, द आंसर फॉर दैट इज डी का किससे मैच करूंगी, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं, 4 3 1 2, दैट मीन्स द आंसर फॉर 142 हैपन्स टू बी द ए ऑप्शन। 143, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर एक्सोटिक स्पीशीज। देखिए हमारे पास में क्या है, आइकोनिया, नाइल पर्च, लैंटना कैमरा। लेट्स गो फॉर इट। मैंने आपको वैसे तो आंसर फॉर दैट इज ऑल ऑफ दिस, सो आंसर इज डी, बट स्टिल याद करने का कैसे सिखाया था आपको, ना प्लीज, ठीक है ना, ना प्लीज। एन से नाइल पर्च, ए से क्या, अफ्रीकन कैटफिश, पी से पार्थेनियम, एल से लैंटना कैमरा, ई से आइकोनिया, ए से एलियन स्पीशीज। सो दैट मीन्स हमारे पास में ये सारे के सारे हैपन्स टू बी करेक्ट। और इंडिया में ये तीनों के तीनों है, लैंटना कैमरा, पार्थेनियम एंड आइकोनिया, ठीक है। द आंसर फॉर दैट हैपन्स टू बी ऑप्शन नंबर डी। 144, ये भी मैंने आपको सिखाया था याद करने के लिए, आई होप यू स्टिल रिमेंबर दैट। देखो इसको मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये जो बना है, टू रिमेंबर दिस, ये मेरे पास इस साइड में जो ई है, दैट हैपन्स टू बी फिशेस। अब इनको याद कैसे करना है, इसको भी मैंने आपको सिखा दिया था। हमारे पास में ऐसा बना हुआ है। चले, मैंने आपको बताया था ऊपर के दोनों हमने क्या याद करना है, दोनों वार्म ब्लडेड एनिमल्स, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। सो दैट मीन्स ये दोनों रेगुलेटर्स है। कौन कौन है, ये मेरे पास मैमल्स है, ये मेरे पास बर्ड्स है। सिखाया था आपको, मैमल्स एंड बर्ड्स आर रेगुलेटर्स। कौन मेरे पास कन्फर्मर्स है, तो मेरे पास में रेप्टाइल्स है, और मेरे पास में कौन आ गया बचा, एम्फीबियंस है। चलिए देखो इसको, ई, ई इज फिशेस, ठीक है। फिर मेरे पास ए, अच्छा इसको देखो कैसे देखना है, ए मेरे पास मैंने क्या बताया, एम्फीबियंस, सॉरी ए मैंने क्या बताया आपको, मैमल्स, ए मैमल्स है ना, हाँ जी। बी मैंने आपको क्या बताया, वहां पे बी, चलो वो भी बी है, बर्ड्स है, ये दोनों वार्म ब्लडेड है। ई तो फिशेस है ही, इसको अब यहां से देख लेते एक बार। ए कौन सा आ गया मेरे पास में, मैमल्स, बी मेरे पास में बर्ड्स, फाइन, ई मेरे पास फिशेस, सी मेरे पास रेप्टाइल्स, और मेरे पास डी जो है मेरे पास में क्या है वहां पे, एम्फीबियंस। तो कौन सा बचता है यहाँ पे, मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा आंसर तो आ गया, बट वो ऊपर नीचे है, थोड़ा सा ध्यान से उसको करना पड़ेगा। ओके, फिर से ये पूरा फिशेस, ये मैंने आपको सिखाया कौन है, वार्म ब्लडेड, और बर्ड्स ज़्यादा है दैन द मैमल्स आउट हियर। फिर ये दोनों है मेरे पास में, कौन ज़्यादा है, रेप्टाइल्स ज़्यादा है दैन द एम्फीबियंस। फाइन, चलिए 145, चलिए देखिए इसको भी याद करने का। सबसे पहले इस फिगर में ये बनाया क्या है, दे हैव मेड द प्लांट्स आउट हियर। ई आउट हियर हैपन्स टू बी कौन, ई मेरे पास आ गया यहाँ पर फंजाई। फिर मेरे पास बी आ गया वहाँ पर क्या है, एंजियोस्पर्म्स। सो ज़्यादा हमारे पास में एंजियोस्पर्म्स एंड फंजाई है। वैसे भी फंजाई मैंने आपको बताया था, इट्स मोर देन द फार्म, ठीक है। अब एफ ऊपर से देख लेते हैं, एफ मेरे पास मॉसस है, ए मेरे पास में टाइडोफाइट्स फर्न्स है, फिर डी मेरे पास जो ज़्यादा वाला है वो एल्गी है, फिर मेरे पास में जो बच गया है सी, इट इज लाइकेन। थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। बट देखिए मेरे को याद है, मैंने आपको याद करने का तरीका सिखाया था। लेट्स गो फॉर इट। देखिए डी एल्गी, एल्गी ए नहीं, एल्गी डी, हाँ जी डी आ रहा है मेरे पास, बी और डी में राइट है। फिर मेरे पास क्या आता है, ई फंजाई, ठीक है, सी लाइकेन, एफ मॉसस। तो इसके हिसाब से माई आंसर हैपन्स टू बी द डी ऑप्शन। आई हैव टॉट यू हाउ टू रिमेंबर दैट depending upon the percentage out here. I hope you can remember it. Lichen सबसे कम होंगे, हमारे पास एंजियोस्पर्म्स एंड फंजाई सबसे ज़्यादा होंगे। फाइन, चलिए
विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। हमारे पास में हम लोग राइस के बिना हमारा जीना ही नहीं पॉसिबल है, तो ऑटोमेटिकली याद करने के लिए द आंसर फॉर 146 हैपन्स टू बी सी, राइस। ठीक है ना, कितना वेराइटीज है? 50,000 वेराइटीज ऑफ इट। Whereas हमारे पास मैंगो का कितना वेराइटीज है? मैंगो का 1000 वेराइटीज ऑफ इट इन इंडिया। फाइन, चलिए 147 द फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। ये तो मैंने आपको सिखाया था थोड़ा सा पहले के जैसा। ये द फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ इट, प्रोडक्टिविटी, ए इज प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली इट इज द टोटल बायोमास, तो इट इज द फंक्शनल कंपोनेंट। बी इज व्हाट? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। यस, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज ऑल्सो द कंपोनेंट। वहां पे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ऑप्शन में था नहीं था। फिर मेरे पास में क्या है? मेरे पास में डिकम्पोजिशन, इट इज बी इज डिकम्पोजिशन राइट है, सी इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग राइट है। फिर मेरे पास डी इज एनर्जी फ्लो राइट है, ई इज सक्सेशन रॉन्ग है, एफ इज स्ट्रैटिफिकेशन रॉन्ग है। सो दैट मीन्स मेरे पास में ए बी सी डी राइट है, सो दैट मेक्स इट ऑप्शन नंबर बी। फाइन, सक्सेशन और स्ट्रैटिफिकेशन फंक्शनल कंपोनेंट्स नहीं है। दोनों का मीनिंग सिखा दिया मैंने आपको पहले क्वेश्चंस में। 148 ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्पीशीज को हम पायोनियर बोलते हैं, बीच की स्पीशीज को हम लोग सीरियल स्टेजेस बोलते हैं, एंड लास्ट को हम लोग बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। फाइन, अब इसमें क्या है? द ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल, मैंने आपको बताया था, हमको मालूम है लाइकेन के बाद मॉसस ही आएंगे, मॉसस के बाद ग्रासेस ही आएंगे, हर्ब्स ही आएंगे। सो द ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ओवर अ गिवन एरिया, सो दैट इज नोन। सो दैट मीन्स द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी ऑप्शन नंबर बी। फिर भी देखते फर्स्ट ऑप्शन, द चेंजेस लीड्स टू कम्युनिटी दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद द एनवायरमेंट, करेक्ट। यहां तक इज नोन एज पायोनियर कम्युनिटी, रॉन्ग। उसको क्या बोलते हैं? क्लाइमैक्स कम्युनिटी, so that is wrong. The establishment of a new biotic community is very fast in the primary phase, slow in the primary phase, fast in the secondary phase. The number and types of animals remain constant. No, it keeps on changing. So सब में क्या क्या problem है? I've told you, but the answer for option number 148 happens to be option number B. 149. The rate at which the light energy is converted to chemical energy of the organic molecules is called as GPP. Obviously, GPP means gross primary productivity. ठीक है ना? What is it? The rate at which the light energy is converted to chemical energy. लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ऑब्वियसली सोलर एनर्जी से केमिकल बनाते हैं, खाना बनाते हैं। What is that known as? Gross primary productivity. Highest rate of GPP is shown by the equatorial rainforest. सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ पर मिलती है? रेन फॉरेस्ट में मिलती है। सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट वो इसका रीजन नहीं है। बट एक और चीज, GPP और एक और वर्ड था NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो व्हाट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? इट इज GPP माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। फाइन, सो दैट इज इट। आपको मैंने सिखाया था व्हाट डज इट मीन, so that is it. But the reason does not explain the assertion out here, therefore the answer for the question happens to be option number B. 150 the wavelength required for photosynthesis is called PAR. Obviously आपको सिखा दिया what is that. It is the VIBGYOR which is 400 to 700 nanometer. ठीक है ना, यही यूज करते। PAR comprises of 50% of the total solar radiant energy. बता दिया मैंने आपको। So that means दोनों right है, और ये क्या है? इसका explanation is not, it's not explaining that. ठीक है? So what is this? It is the B option. Fine? चलिए, so that's all for this. I hope आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है। अब इसके बाद से we are going to start with the full syllabus. You are supposed to do very well now from the full test because आपने सब पार्ट टेस्ट कर लिए हैं। सो प्लीज फोकस, अभी आप बिल्कुल डाइवर्ट मत होइए, फोकस करोगे, हार्ड वर्क ऑलवेज पेस, तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। फाइन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।